Only 15 participants. Okay, start writing your name. Okay, so very good morning to everyone. So today's your topic is nothing but the analytical method validation. The subtopic is issues in method transfer. Out of that, which is we have already studied what is exactly method transfer and the different types of method transfer. Currently, we are discussing about what are the issues come during the method transfer. As I say, method transfer के जो issues है, they are not the particular type of issues where you can get the written PDF or something, because issues are come when you are actually applying the method or actually transferring the method or actually performing the methods into different laboratories. So during the performance of the method, based on their background, based on the error, how we are handling the chemicals, based on that all these things and lack of knowledge or the instructions are not clearly mentioned, based on that the number of issues are come actually during the method transfer. Okay, so before we start the actual topic of issues in method transfer, I get the queries from few students on the WhatsApp, or in that way you have little bit problem with respect to your assignment, that you are not clear about the what should be right in the assignment. So first of all, we will clear those point with respect to assignments. Then we will continue the topic. Okay. Okay. So I have posted a two assignment on your Google Classroom. First one is that is your ASU, standardization of ASU, that is your paper 3 unit, I don't know, unit 4 or unit 1. I guess unit 1 301. In that particular assignment, anybody having any doubt with respect to that particular assignment, just write in chat box. Do you have any doubts with respect to ASU, standardization of ASU? Okay. I expanded the date of that particular assignment because I feel whenever you are performing the validation of method, so जब तुम्हारा knowledge थोड़ा सा fresh रहेगा, so we can easily write and search with respect to that is AMV वाला assignment. तो ASU का असाइनमेंट मैंने बोला था 15 डेज में कनेक्ट करना है, तो उसका डेट मैंने इंक्रीज किया है, शायद वो नेक्स्ट महीने के 15 तारीख को वगैरह रहेगा, यू कैन चेक. एंड जो सेकेंड असाइनमेंट मैंने पोस्ट किया है, दैट इज योर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिडेशन. तो few people have a little bit doubts with respect to that कि exactly उसमें लिखना क्या है या फिर क्या फाइंड आउट करना है, वी आर नॉट क्लियर. So exactly what we have to supposed to do in this particular assignment, the topic is nothing but the regulatory requirement of the validation. Okay. Now you know the what is the regulatory requirement, because तुम लोग को पता होना चाहिए, hope so. Next, validation. अभी तुम लोग को validation क्या हो in detail में समझना है. So when you are performing the validation of any method, ठीक है, जब भी हम लोग किसी method का validation करते हैं, so during the validation, there are lots of regular requirements. Means what? It's nothing but a documentation. Okay? What are a documentation you supposed to submit before the validation, during the validation, and after validation? ठीक है? क्या documentation तुम लोग को लगेंगे, ठीक है? To keep in that particular file and to submit to the particular authority. So उसके लिए FDA have mentioned some guidelines कि what document you are supposed to collect or you supposed to store, what that is a proof of your analytical method validation. So what are these documents ये तुम लोग को find out करना है. So उसके ऊपर FDA ने कुछ guidelines दिए हैं जो तुम लोग को internet पे definitely मिलेंगे. If you are not getting, so I have already discussed कि these are the some guidelines जिसके अंदर तुम लोग को बताया गया है कि what are the documents you are supposed to submit, or what are the documents you supposed to store or file it for, that is a purpose or it is a proof that you have properly perform your validation. तो क्या क्या रहेंगे स्टार्टिंग में, बिफोर द स्टार्ट वैलिडेशन देयर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स तुम लोग को लगेंगे. फॉर एग्जांपल, मेथड प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है नहीं, प्रॉपर्ली स्टैंडर्ड जो है उसका सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है या नहीं, जो भी सैंपल है उस सैंपल के कुछ रिक्वायरमेंट रहेंगे. तो दीज आर द सम डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, दैट इज द बिफोर वैलिडेशन. ड्यूरिंग वैलिडेशन जो भी तुम लोग हर एक टेस्ट करते हो, उस टेस्ट का एश्योरेंस देने के लिए यू आर रिक्वायर्ड सम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. ठीक है, विच इज प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज प्रॉपरली डन एंड बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया हम लोग को मिलता है. जैसे कि हर एक टेस्ट के नीचे मैंने एक स्लाइड डाली है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन लिमिट्स. सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट द एग्जैक्टली कौन से डॉक्यूमेंट तुम लोग को लगेंगे. इस टॉपिक में तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाते सोच.
नहीं, इट इज नॉट दैट, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं है। मतलब ऐसा दिस इज नॉट सच काइंड ऑफ असाइनमेंट कि तुम लोग इंटरनेट पे जाओगे, ये गाइडलाइन दिखा, इस गाइडलाइन को कॉपी पेस्ट करोगे, नो, डेफिनेटली नॉट। ठीक है, यू हैव टू थिंक लॉजिकली कि एग्जैक्टली मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लग सकते हैं, व्हाट आर द रेगुलेटरी। इसके ऊपर बहुत सारे गाइडलाइंस इंटरनेट पे अवेलेबल है कि एग्जैक्टली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन वैलिडेशन के ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है बिफोर, ठीक है, ड्यूरिंग द वैलिडेशन एंड आफ्टर कंप्लीटेशन। इसका सारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम लोग को लिस्ट बनाना है। बिफोर वैलिडेशन व्हाट यू हैव टू सबमिट, during validation what are the documents you have to submit, what are the criteria, what are the limits, and after validation what documents you have to submit. So these are the nothing but the list of the document, list of the criteria, list of the guidelines which you should be follow and which should be the regulate your method validation. So still anybody is having any doubt what exactly we supposed to do, you just enlist that particular document, enlist the particular points ki what you should be कि क्या क्या regulatory guidelines रहेंगे, क्या क्या regulatory documents लगने वाले हैं, उसको तुम लोग को enlist करना है in detail। मतलब जैसे कि suppose एक्यूरेसी के लिए कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तुम लोग को सबमिट करना है, तो व्हाट डॉक्यूमेंट रहेंगे, जैसे एग्जांपल क्रोमेटोग्राम, अलोंग विद द क्रोमेटोग्राम एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसके बाद आरएसडी का जो भी कैलकुलेशन किया हुआ पेज रहेगा वो डॉक्यूमेंट रहेगा, इट इज अ प्रूफ कि तुम लोग ने एक्चुअली परफॉर्म किया। स्टार्टिंग में मेथड जैसे कि मैंने बोला कि बिफोर यू विल बी रिक्वायर्ड, जो भी स्टैंडर्ड यूज किया है सच में स्टैंडर्ड यूज किया है कि ऐसे ही यूज किया है रेफरेंस मटेरियल, तो स्टैंडर्ड का रेफरेंस सर्टिफिकेट लगेगा अलोंग विद द डेट। तो सर्टिफिकेट के ऊपर क्या मेंशन होना चाहिए, डेट होना चाहिए, उसका प्यूरिटी ऐसे मेंशन होना चाहिए, ये सारी चीजें तुम लोग को हर एक पॉइंट में लिखनी है एंड ये डॉक्यूमेंट तुम लोग को एनलिस्ट करना। So this is the particular assignment. So anybody is having till any doubt with respect to this particular assignment, you can ask to just unmute yourself or raise your hand if you have any doubt still now. Otherwise, we will continue the today's lecture. So can I continue for the lecture? Just write yes if there is no doubt. No, ma'am, understood. Yes. Okay. So we will continue the today's lecture. Okay. Uh, So we will come to the that last slide where we are actually discussing the issues. As I say, कि sorry, by mistake we must हुआ था 76 slide. I think 11th or 12th slide is your last slide. ठीक है? So issues in method transfer. So what are the issues generally रहेंगे, उसको मैंने हर एक कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कौन से इश्यूज होते हैं। देन मैंने पहले भी बोला था कि इट इज अ डिस्कशन लाइक फॉर अ टॉपिक, इट इज अ ग्रुप डिस्कशन वेयर वी आर एक्चुअली शेयर द व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज जनरली मतलब होते हैं व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग द मेथड। सो मिसकम्युनिकेशन वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर हम लोग ने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे एंड फ्रॉम द यस्टरडेज लेक्चर एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग द वन I was sharing my experience with respect to the vitamin C का, ऐसे हम लोग कर रहे थे एंड ड्यूरिंग कि हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट इज एग्जैक्टली इशू। तो द वी आर डिस्कसिंग लाइक दैट कि हम लोग जनरली वी आर परफॉर्मिंग द विटामिन सी किसी और सैंपल, मतलब कंपनी से हम लोग के पास एक सैंपल आता था, उस सैंपल में विटामिन सी का ऐसे करना था। ठीक है, सो देयर आर 10 to 15 सैंपल्स होते थे उनके एंड हर एक सैंपल का कंसिस्टेंसी सेम होता था। बट व्हेन वी आर टेकिंग द रीडिंग ऑन द यूवी, हम लोग को ऐसे होता था कि 4 to 5 रीडिंग्स लेने के बाद पीछे के सैंपल्स के रीडिंग में डिक्रीजिंग रीडिंग आते थे। ठीक है, स्लाइड। तो हम लोग को फाइंड आउट करना था कि व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू दैट मेथड। उनका दिया हुआ था स्टैंडर्ड, वो लोग प्रोवाइड करते थे, सैंपल भी वो लोग प्रोवाइड, हम लोग को सिर्फ उनका मेथड फॉलो करके रिजल्ट देना था। एंड ऐसे नहीं कि मेथड फॉलो करने के बाद रिजल्ट्स नहीं आते थे, रिजल्ट्स आते थे, लेकिन प्रॉब्लम तभी होता था कि 5 या 6 सैंपल के बाद रीडिंग डिक्रीज होता है। मतलब जब हम लोग रीडिंग लेने जाते थे दैट टाइम पे देयर इज सम प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, तो विटामिन सी जैसे मैंने बोला इट इज अ वेरी लाइट सेंसिटिव, और हम लोग का प्रॉब्लम था कि यूवी जो था वो पूरा खिड़की के पास में था जहाँ से डायरेक्टली लाइट एक्सपोज होता था। तो देन वी रियलाइज कि ऐसा होता है बिकॉज जब भी हम लोग रीडिंग लेना स्टार्ट करते थे तो हर एक सैंपल का स्कैन वगैरह करने के बाद मिनिमम 2 मिनट्स इस सैंपल को लगते थे हम लोग को रीडिंग, एज पर देयर क्राइटेरिया जो भी रीडिंग्स हम लोग को लेने थे। तो 1 और 2 मिनट्स लेने के बाद मिनिमम जो 7-8 सैंपल या फिर 5-6 सैंपल था उसका रीडिंग आने तक ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके होते थे। तो उस 10 मिनट्स में वो जो खिड़की से जो लाइट आता था, दैट बिकॉज ऑफ दैट लाइट एक्सपोजर हम लोग को रीडिंग में डिक्रीज आता था, मतलब रीडिंग्स हमारे डिक्रीज होते थे।
तो उसके बाद हम लोग ने क्या किया, वी आर एक पुराना बॉक्स, जैसे अपने केमिकल के बॉक्स होते हैं, वो बॉक्स लिया। तो जब भी हम लोग रीडिंग लेने के लिए वहां पे जाते थे, so we are keeping all the flask in that particular that box, closed box. जब जिसका रीडिंग लेना है वही को उठाना है, उसके बाद रिपीटली उसी के अंदर रखना है, तो उससे हम लोग के वेरिएशन कम आए। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सबको पता होता है कि विटामिन सी लाइट सेंसिटिव, तो जब भी हम लोग ने ऐसे परफॉर्म करते थे, तो जनरली हम लोग सारे लाइट्स ऑफ करते थे ताकि एक्सपोजर कम हो। लेकिन रीडिंग लेते वक्त हम लोग को इतना रियलाइज नहीं होता था कि खिड़की से जो लाइट आ रहा है, बिकॉज रीडिंग लेने में कितना टाइम लगता है, तो वी आर फीलिंग कि उसमें थोड़ी ना कुछ वेरिएशन आएगा या फिर डिक्रीज कुछ होगा करके। तो ये प्रॉब्लम क्यों आया था, बिकॉज ऑफ द जो हम लोग का यूवी था वो खिड़की के पास। so this is a one kind of issue because of the environmental factor is affecting on your sample. अदर एंड आई कैन से कि जब भी तुम लोग कोई ऐसे करते हो, जैसे कि सपोज एक मेथड ट्रांसफर करना है, किसी सैंपल का मैंने एनालिसिस किया है, so whenever I performing that particular assay or developing or validate that method, and after validation I am starting performing the analysis on that particular method, so I get the accurate reading. But when I transfer the method to the another laboratory, so we are getting some problem है कि हम लोग को properly readings नहीं आ रहे, कुछ तो readings के अंदर decrease आ रहे हैं, मतलब each and every sample में जितना efficiency या फिर जितना percentage accuracy हम लोग को, जैसे कि imagine करो when we are develop and validate method after performing get the 80% of assay, बट जब हम लोग किसी और लेबोरेटरी में वो परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम वी आर गेटिंग अराउंड 70 टू 75 और 75 टू 80 के बीच में सैंपल का ऐसे आ रहा है। सो व्हाट विल बी द रीजन, तो हर एक फैक्टर को जब तुम लोग फाइंड आउट करोगे, वी आई विल डिस्कसिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर एक्चुअली। तो प्रॉब्लम ऐसा था कि जब भी जिस लैब में मेथड वैलिडेशन हुआ है, मे बी वहाँ पे पूरा एसी, मतलब इट इज एयर कंडीशनर रूम की, जहाँ पे ऑटोमेटिक एसी सिस्टम होता है, इसको क्या बोलते हैं मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, पूरा एसी से कवर होता है, यू कैन नॉट क्लोज एसी एंड, तो वैसे रूम में किया था। एंड जो अदर लैब है, उस लैब में एसी नहीं था, इट इज अ वेट लेबोरेटरी, तो इट इज अ ओपन सिस्टम। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट कि एनवायरमेंट के हिसाब से, मतलब वहाँ का जो टेम्परेचर वगैरह था, इट मे बी अफेक्ट ऑन योर सैंपल, नॉट ओनली टेम्परेचर, sometimes humidity is also affecting your sample because based on the temperature, density of the water, and ये सारी चीजें बहुत changes होती है। जैसे कि सपोज किसी सैंपल का सिंपल है, अगर कोई तुम लोग ने एसओपी बनाया है, इमेजिन करो यू हैव द अडुल्सा सिरप, एंड अडुल्सा सिरप का तुम लोग को चेक करना है डेंसिटी कितना है, तो सपोज अडुल्सा सिरप का डेंसिटी है 1.2। ठीक है, इज डेंसिटी व्हेन उसकी, अभी उसका डेंसिटी कैसे चेक करना है, उसका तुम लोग के पास प्रॉपर मेथड है, उस मेथड से तुम लोग ने वहाँ पे चेक किया, एंड वहाँ पे इमेजिन करो कि उनको पता है डेंसिटी कैसे करना है। तो रेगुलरली उनके पास सैंपल आते, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुम्हारा मेथड देखा नहीं। वाई? बिकॉज हर एक सैंपल का डेंसिटी चेक करने का एक ही मेथड होता है। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर फ्लास्क होता है, उसका एम्प्टी फ्लास्क का वेट लेना है, उसके बाद उसके अंदर वाटर डालना है, वाटर का वेट लेना है, उसके बाद तुम लोग को तुम्हारे सैंपल का वेट लेना है, एंड उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है जिससे तुम लोग डेंसिटी करते हो। तो तुम लोग ने जिस मेथड देखा, इट इज द सेम मेथड तुम लोग को करना है, तुम लोग ने स्टार्ट किया, लेकिन वहां का डेंसिटी का रिजल्ट एंड यहाँ का डेंसिटी का रिजल्ट बहुत ज्यादा आ रहा है। यू नो व्हाई? बिकॉज जो वाटर वहां पे यूज कर रहे थे, that time they are using the deionized water, and whenever you are using the water for to check the density, you are using the water that is your टैप वाटर। ठीक है, तो अभी दोनों के वाटर के अंदर क्या कि वहां का अगर वाटर यहाँ का है, तो इट्स सेल्फ वाटर का ही डेंसिटी अलग है। ठीक है, भले तुम लोग कितने टेम्परेचर पे देखो, सो उसके हिसाब से फैक्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है तुम्हारे रीडिंग में। so ऐसे कुछ कुछ हो सके, तो definitely you have to mention whenever you are using analysis for this particular sample, specifically use deionized water वगैरह, ऐसे थोड़ी steps। इट इज अ जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, क्योंकि इतना जनरली डेंसिटी में इतना वेरिएशन नहीं आता, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ सैंपल ऐसे होते हैं। मोस्ट प्रोबब्ली कहाँ पे प्रॉब्लम है, व्हेन वी आर चेकिंग द फ्लेवर्स। ठीक है, फ्लेवर के डेंसिटी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बिकॉज दे आर वेरी प्योर फॉर्म में, इट्स डिपेंड की डेंसिटी जनरली चेकिंग द प्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्लेवर। तो अगर डेंसिटी, मतलब उनका डेंसिटी बहुत स्पेसिफिक ही होता है, हार्डली प्लस और -1 और 0.1 ऐसे उसका कुछ तो रीडिंग, मतलब क्या बोलते हैं, रेंज होता है। सो व्हेन यू आर चेकिंग द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, तो वहां पे अगर तुम लोग का डेंसिटी विद इन द लिमिट में नहीं बैठता है, तो your completely sample is failed, because this is the major criteria for acceptance of your sample, that is उसका reflective index and density। ये बहुत important होता है when you are checking the flavor के लिए।
तो उसके डेंसिटी में प्रॉब्लम कब आता है पता है, व्हेन यू आर यूजिंग द डिफरेंट, जनरली व्हेन वी आर यूजिंग द प्रॉपर्ली डीआयोनाइज एंड डबल डिस्टिल वाटर, तो डेंसिटी का टेस्ट में इतना मतलब वेरिएशंस नहीं आता, बट सपोज यू आर यूजिंग द टैप वाटर, ठीक है, तो इट डिफिकल्टी गिव सम रिजल्ट बिकॉज टैप वाटर इज हार्डनेस बहुत, इसमें उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स होते हैं विच मे इफेक्ट ऑन योर सैंपल का एनालिसिस। तो व्हेन जनरली हम लोग बोलते हैं कि डिस्टिल वाटर यूज करना है, लेकिन अभी हम लोग को थोड़ी ना उसका यूवी पे रीडिंग लेना है या फिर ऐसे कुछ करना है, तो समटाइम्स नहीं है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी ऐसे होता है लेबोरेटरी में कि अभी वाटर अवेलेबल नहीं है, तो जनरली यू आर यूजिंग द नॉर्मल वाटर एंड जो उसका फैक्टर रहेगा उस फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई करो ताकि जो भी तुम लोग का रिजल्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है वो कम हो जाए, बट स्टिल समटाइम्स इट मे अफेक्ट ऑन योर रिजल्ट। सो इट्स इधर से कि यहाँ पे मेथड से ये रिजल्ट आ रहा था, वहां पे जब तुम लोग सेम मेथड फॉलो करो तो तुम लोग को अलग रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज द वाटर विच यू आर यूजिंग एक्चुअली इट मेक्स द प्रॉब्लम। Another example which I can see, this example actually we are discussed when we are going for a training for AS, ठीक है, AS इंस्ट्रूमेंटेशन का हम लोग को ट्रेनिंग था इन शिमाट्सू में। तो जब वो ट्रेनिंग होता है जनरली द ट्रेनिंग इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल which are working in a company, and during the analysis जब भी वो एनालिसिस करते हैं तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं एंड हाउ टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सेम कि अभी जनरली कैसे होता है कि जब भी शिमाट्सू का कोई इंस्ट्रूमेंट से कि वो जिनका ये प्रॉब्लम था और दे आर द फ्रेशर्स, मतलब उन्होंने जस्ट रिसेंटली एएस इंस्ट्रूमेंट लिया था एंड इंस्टॉल किया था, दे नेवर नो कि व्हाट इज एग्जैक्टली हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज उन्होंने बोला कि तुम लोग को उनके पास कोई सैंपल्स आने वाले थे वाटर के सैंपल जनरली, एंड जिनके यहाँ से सैंपल आने वाले थे उनका क्राइटेरिया था कि हम लोग को एएस इंस्ट्रूमेंट से ये पर्टिकुलर एलिमेंट का एनालिसिस चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एएस स्पेसिफिकली खरीदा था एंड उसके बाद उनका वहाँ पे डेफिनेटली ट्रेनिंग हुआ होगा एंड दे आर स्टार्टिंग एनालाइजिंग, एंड उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम्स थे वो उनको सॉल्व करने के लिए वो आए। तो द प्रॉब्लम उनको ऐसे था कि जब भी वो एनालिसिस करते थे सैंपल के लिए, दे ऑलवेज गेटिंग द इंटरफेरेंस ऑफ द NaIF, स्टिल दे आर यूजिंग deionized water, they are using double distilled water properly, मतलब जनरली दे आर यूजिंग HPLC। उन्होंने बोला कि हम लोग वाटर हमारे यहाँ पे प्यूरिफाई करते ही नहीं है, वे डायरेक्टली यूजिंग HPLC ग्रेड वाटर फॉर योर सैंपल एनालिसिस, बट स्टिल वी आर गेटिंग द Na का इंटरफेरेंस इन आवर रिजल्ट। सो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट, तो जो भी उसका मेथड था सैंपल का एनालिसिस का वो भी इन्हें इसने क्या बोलते शिमार्जू वालों ने दिया था कि ये सैंपल का एनालिसिस करना है, बिकॉज दे वो लोग न्यू थे, तो जनरली कैसे करना है सैंपल का एनालिसिस, तो उसका एक प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है कि सैंपल का पहले ऐश बनाना है, फिर ऐश को एसिडिक फॉर्म AgNO3 के अंदर डिसॉल्व करना है, डिसॉल्व करने के बाद उसको फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद उसको डाइल्यूशन करना है एंड ठीक है। तो सैंपल मतलब बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं एएस के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डाइजेस्ट योर सैंपल, डाइजेशन के अलग अलग मेथड्स होते हैं, आइदर ऐश, आइदर लिक्विड, आइदर HCl से AgNO3 से डिफरेंट डिफरेंट मेथड तुम लोग सैंपल डाइजेस्ट करते हो। डाइजेस्ट करने के बाद सैंपल को कम्प्लीटली डिसॉल्व करते हो किसी एसिडिक सॉल्यूशन में, एंड कम्प्लीटली डिसॉल्व होने के बाद यू मेक डाइल्यूशंस एंड देन यू फिल्टर, बिकॉज एनी पार्टिकुलेट मैटर में बी क्लॉग योर इंस्ट्रूमेंट, तो फिल्टर करने के बाद देन तुम लोग एनालिसिस करते हो। तो डाइजेशन के क्या क्या मेथड से इनका पूरा प्रोटोकॉल वो देते हैं, ठीक है। तो जब ये सारे पॉइंट डिस्कस हो रहे थे तो उस बंदे ने बोला कि वी हैव गेटिंग द प्रॉब्लम विद द Na इंटरफेरेंस, सो व्हाट मे बी द रीजंस बिहाइंड इट। सो ड्यूरिंग द एनालिसिस उसके बाद अभी सब लोग सोचने लगे कि इसके ऊपर क्या, बिकॉज वहाँ पे पूरा ऐसे ग्रुप डिस्कशन था, तो हर एक जन अपना प्रॉब्लम बता रहे थे एंड वो प्रॉब्लम मतलब हर कोई को अगर किसी को रीजंस पता है उसका तो वो रीजंस बता रहे थे कि व्हाट मे बी द रीजन बिहाइंड। तो उन्होंने उसके साथ जब और एक कोई मतलब किसी और कंपनी से आए थे, दे हैव लॉट्स ऑफ मतलब उनके पास काफी पहले से एएस रहेगा, बिकॉज उनके बातों से ऐसे लग रहा था कि दे आर वेरी वेल मतलब कि वेल एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो उन्होंने हम लोग को बताया कि उसको कि ये प्रॉब्लम जो ज्यादा सेम प्रॉब्लम्स आल्सो इंटरफेयरिंग विद अस, मतलब हम लोग को Na से बहुत प्रॉब्लम होता था। तो यू नो द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, दे से द व्हाटएवर ग्लासवेयर यू आर यूजिंग that making the interference of Na, that means सिलिका के बोरोसिल के जो ग्लासवेयर्स होते हैं इट्स लीकिंग द Na, दैट इज अभी अभी जस्ट क्वेश्चन मार्क है कि
ग्लास में से Na कैसे लीक होगा, बिकॉज इट्स अ टफ ग्लास, बट डेफिनेटली वी आर ग्लास इज नथिंग बट द सिलिका, एंड उसको अंदर डेफिनेटली इट्स द मेटल, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स रहते हैं, एंड वेन एवर यू आर यूजिंग द एस के लिए जो भी सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं, दे आर हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। जैसे उसको जब तुम लोग डाइजेस्ट करते हो तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हो, देन कॉन्सेंट्रेटेड AgNO3 डालते हो, देन यू आर मेकिंग द डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन करने के बाद भी मैक्सिमम टाइम्स योर सैंपल इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो इस एसिडिक कंडीशन में देयर आर चांसेस कि तुम लोग ने सैंपल, मतलब जनरली हम लोग बोलते हैं कि एएस के सैंपल स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो आज प्रिपेयर करके देखो, जनरली हम लोग ऐसे ही करते हैं, सैंपल तुम लोग को है ये प्रैक्टिकल अभी दिस सेमेस्टर में, तो यस मतलब एनालिसिस के एक डे पहले तुम लोग उसका सैंपल का पूरा प्रिपरेशन करके रखते हो, एंड नेक्स्ट डे वी विल एक्चुअली डू द एनालिसिस, बिकॉज जो सैंपल डाइजेशन है वो डाइजेशन के लिए 6 to 7 आवर्स लगते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले सैंपल को डाइजेस्ट करते हैं, नेक्स्ट डे फिर उसका डाइल्यूशन बना के या फिर डाइल्यूशन वगैरह बना के रेडी रखते हैं, एंड सेकेंड डे पे वी आर एक्चुअली टेकिंग द रीडिंग। तो उन्होंने बोला कि जब भी हम लोग सैंपल बोरोसिल ग्लास के ग्लासवेयर में स्टोर करते हैं, so that glass leaks some Na molecules and which may interfere in your sample, because they are say कि ये प्रॉब्लम हम लोग को भी फेस हुआ था। सो इंस्टेड ऑफ ग्लासवेयर, दैट इज ग्लास के क्या बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करने की जगह पे वी आर यूजिंग पीईपी, दैट इज योर कोई तो पॉली, अभी पता नहीं, जो बच्चों को बॉटल्स आता है पता है, उसकी टाइप एक कोई अपने पास भी है प्लास्टिक के, क्या बोलते हैं मेजरिंग सिलेंडर। तो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक के ग्रेड वाले सिलेंडर्स वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आते हैं। तो उन्होंने बोला कि वी आर स्टार्टेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लास्टिक फ्लास्क। After using this kind of flask, we realize that we are minimizing that interfering of Na. तो इससे यही प्रूव हुआ कि बाकी सारी चीजें सेम थी, लेकिन जो ग्लासवेयर हम लोग यूज करते हैं उसके ग्लास का क्वालिटी जो होता है, इट्स मे बी इंटरफेयर यूर इन योर रिजल्ट। अभी ये किसी ने सोचा भी होगा कि ग्लास, बिकॉज वी आर फीलिंग ग्लास इज 100% प्योर, उससे कभी भी कुछ भी, जनरली वाई वी आर नॉट यूजिंग मेटल्स और जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर ऐसी चीजें क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज ग्लास में से कुछ आता नहीं है। बट उन्होंने ऐसे बोला कि ग्लास में इंटरफेरेंस, बिकॉज एएस कैसे होता है, इट इज अ हाईली सेंसिटिव, इट कैन मेजर योर सैंपल इन पीपीबी मिलियन, इट इज अ पार्ट्स पर बिलियन। 1 ppb सैंपल मतलब कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा किसी मेटल का, देन ऑल्सो यू कैन इजीली क्या बोलते हैं एनालाइज दैट पर्टिकुलर मेटल्स। तो इतने पीपीबी लेवल तक, क्योंकि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट के सेंसिटिव इतनी इतनी नहीं होती, तो वहां पे मे भी जो ग्लास से कुछ लीक आउट होता भी होगा, सो इट्स मे नॉट बी इंटरफेयर, बिकॉज उसका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया या फिर उसका जो सेंसिटिविटी है वो इतना सेंसिटिव नहीं है जितना एएस का है। तो इसीलिए व्हेन वी आर यूजिंग एएस का सैंपल, सो इफ यू आर यूजिंग द बोरोसिलिकेट या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ चीप वाला ग्लास अगर तुम्हारे पास रहेंगे, तो इट मे इंटरफेयर इन योर रिजल्ट। तो ऐसे उन्होंने बोला कि ये तुम लोग करके देखो, अभी मुझे पता नहीं उनका प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व हुआ या नहीं, बिकॉज उसके बाद नेक्स्ट सेशन में तो हम लोग नहीं थे, बट उन्होंने बोला कि बिकॉज हम लोग के साथ सेम प्रॉब्लम हुआ था, एंड व्हेन वी आर एक्चुअली चेंज द ग्लासवेयर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। सो दिस इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट वेरिएशन, कि कैसे होता है कि इक्विपमेंट जो भी हम लोग यूज करते हैं उसके वजह से भी देर आर सम इंटरफेरेंस आ सकता है, ऐसे छोटी मोटी चीजें, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इट मे बी इंटरफेयर विद इट। जस्ट 1 second, आई जस्ट कम इन 1 second, वेट अ मिनट। ओके, सो कैन वी कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि कैसे वेरिएशंस आता है। अभी देखो जो भी मेथड्स हम लोग यूज करें वो सेम था, फिर भी जैसे कि इमेजिन करो किसी एक लैब में एनालिसिस हो रहा है और दूसरे लैब में एनालिसिस हो रहा है, लेकिन जस्ट वी आर यूजिंग द डिफरेंट ग्लासवेयर, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इंस्ट्रूमेंट के लिए। और हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन वी आर वेरी द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि जैसे कि मैंने बोला कि C18 का कॉलम है जिसके ऊपर हम लोग का एनालिसिस करना है,
तो C18 का कॉलम वाटर का भी आता है, शिमाज़ू आल्सो गिविंग द कॉलम फॉर द HPLC इंस्ट्रूमेंट, पल्की एल्मर के भी कॉलम्स होते हैं, बट डेफिनेटली बेस्ड ऑन स्टिल दे हैव द C18 या फिर उसका जो स्टेशनरी फेज है वो सेम हो, still particle size same है, सब कुछ same है, still you get little bit variation when you are using a different column. uh, just not only the instrument one single part, जैसे कि UV भी है किसी और इंस्ट्रूमेंट पे है, यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज थोड़ा, sometimes it may affect on results, interference of your results. And next जो है that is nothing but the I can say कि मैनुअल एरर, ठीक है, वर्किंग कंडीशंस के अंदर आता है कि इट्स नथिंग बट द व्हेनेवर यू आर वर्किंग, सो एनवायरमेंटल के जो भी कंडीशंस होते हैं और दे में इफेक्ट ऑन योर सैंपल, जैसे कि मैंने बोला था कि जब तुम लोग कोई भी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन प्रिपेयर करते हो, डाइल्यूशन वगैरह प्रिपेयर करते हो, सो एनवायरमेंटल जैसे कि एसी है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, दीज आर द सम कंडीशन विच एक्चुअली इफेक्टिंग ऑन योर सैंपल. नेक्स्ट टाइम whatever मतलब reagents we are using for dilution purposes वगैरह, that is also some effect on your results, ठीक है. फॉर मैनुअल एरर के लिए भी मैं मेरा एक लाइव एग्जांपल ले सकती हूँ कि हाउ एग्जैक्टली इट्स गोइंग द ह्यूज डिफरेंस इन योर एनालिसिस. सो आई वाज जनरली दैट टाइम आई वाज जस्ट फ्रेशर, यू कैन से, मतलब मैं मतलब मुझे एक्सपीरियंस था 1 ईयर का उससे पहले एनालिसिस का. एंड उसके बाद जब मैं डॉक्टर्स एनालिटिकल लैब में शिफ्ट हुई थी रिगार्डिंग द HPLC सेक्शन में, तो कोई एक सैंपल था एंड वहाँ पे मतलब वेट केमिस्ट्री लैब में देयर आर 3 पीपल्स आर वर्किंग, लेकिन उस दिन पे बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई डोंट नो व्हाई दोनों बड़ी देयर, एंड कोई एक सैंपल था जिसका टाइट्रेशन करना था, एंड फॉर द टाइट्रेशन अर्जेंट रिजल्ट देना था. तो फॉर द टाइट्रेशन के लिए K2CR2O7 से टाइट्रेशन करना था वो पर्टिकुलर ड्रग्स का, एंड उसके बाद उसका HPLC से ऐसे करके हम लोग को सैंपल सबमिट करना था. बिफोर आई स्टार्ट द HPLC मुझे पहले वो सैंपल का वो जो स्टैंडर्ड था उस स्टैंडर्ड का, हाँ, मुझे ऐसे करना था, ठीक है, बिकॉज वॉट एवर स्टैंडर्ड मुझे यूज करना था वो स्टैंडर्ड एक्चुअली एक्सपायर हो चुका था, मतलब कि जैसे कि उसका प्यूरिटी रहा 98.98% उसका प्यूरिटी था. एंड जस्ट मतलब जैसे कि अभी अप्रैल में मेरा एनालिसिस चालू था, तो मई में उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका. तो इट्स डजंट मीन कि उसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है इसका मतलब हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते. सो आई जस्ट वांट टू चेक कि एक्सपायरी डेट खत्म होने के बाद भी जब मैं वो स्टैंडर्ड का प्यूरिटी चेक करी हूँ, तो सैंपल का प्यूरिटी सच में 99.98% है और ये डिक्रीज हुआ है, ये मुझे कंफर्म करना था, देन ओनली आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. तो उसके लिए कस्टमर से ऑलरेडी बात की थी, बिकॉज न्यू स्टैंडर्ड आने के लिए बहुत टाइम लगने वाला था, उनको तुरंतली बैच रिलीज करना था. तो उन्होंने हमको बोला कि यू कैन यूज योर स्टैंडर्ड बट जस्ट गिव अस द रीडिंग कि व्हाट इज द प्यूरिटी ऑफ स्टैंडर्ड. तो उसके लिए जो एक्चुअली जो टाइट्रेशन करने वाले लोग थे वो नहीं थे, एंड मुझे पहले टाइट्रेशन करना था, उसके बाद ओके ओनली 1 मिनट सर लेफ्ट, लेट्स सी आई हाउ मच आई कैन कंप्लीट. तो ड्यूरिंग द टाइट्रेशन करने के लिए वो जो सैंपल था उसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर था. I think I cannot complete because less than 1 minute हो चुका है. So I will stop here and I will discuss this particular example with respect to manual error and the next insufficient training wala in next session, that is afternoon session. So there are few more examples also which I can discuss in the later. Then I can give you the point what you can exactly write in method issues in method transfer. Suppose it come for the exam for the written exactly because ये एग्जाम्पल तुम लोग नहीं लिख सकते, बट बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल यू कैन एक्चुअली फाइंड द पॉइंट्स कि हाउ यू कैन राइट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज द इशू of method transfer. So better we will stop here. So anybody is having any doubt regarding this, or anybody want to share anything, so you can raise your hand so we can discuss this all in our next session. Are you clear?